नहीं जो है लड़की गई है बोल दीजिए क्लास 7 क्लास 7 इंग्लिश मीडियम मैथ्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन आपको बता दिया गया था। सेकंड बताना है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। सेकंड फर्स्ट पढ़ा दिया गया। सेकंड कम्यूटेटिव लॉ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ एडिशन आपको बताया जा रहा है इफ A and B are any two integers, A and B are any two integers, if A and B are any two integers, then A plus B is equal to B plus A. This types when we get the two integers in this way, then this type addition is called commutative law of addition. This type addition is called commutative law of addition. You know, if A and B are any two integers, A और B दो इंटीजर्स है, दो संख्याओं को जोड़ने के लिए A प्लस B और बराबर B प्लस A इसको लिखा है। इस लॉ को हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तीसरा इसमें देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 प्लस 5 को लिख सकते हैं 5 प्लस 4। सपोज ए है ए बी है, ए बी है ए है, इस तरह से हमने इसको जोड़ा। तो दोनों का जो 9 9 हो रहा है, इसका मतलब कि दिस two integers, when we add these two integers by this method, then it follows the commutative laws of addition. It is if the two any integers join and add to each other in this way, then it follow the commutative laws. By example, 4 plus 5 is equal to 5 plus 4 is equal to 9, and this type addition shows the commutative laws of addition. Another examples, when we 6 plus minus 7 is equal to minus 1, then add minus 7 plus 6 is equal to minus 1. Suppose A 6 is there and minus 7 is B, so when we join the A and B, we add A and B, then minus 7 प्लस माइनस 1 माइनस 7 6 गया, माइनस 1 आ गया, एंड माइनस 7 और 6 को जोड़ेंगे तभी माइनस 1 आया। इस तरह से ये भी फॉलोज कर रहा है इस कम्यूटेटिव लॉज ऑफ एडिशन। इस तरह के जोड़ को इन दिस टाइप ऑफ द एडिशन इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉज ऑफ
This third addition is known as the commutative, and this law, and follow this addition, this law are the commutative law of addition. Now, third property of addition, associative property. Third property, associative law of addition. Associative law of addition. Associative law of addition means if the A and B, if A and B and C, these three integers are 3 are any three integers A, B, C are any three integers. A, B, C are three integers. These are three integers. When write in this way, A plus B plus C is equal to A plus B plus C is equal to A plus B plus C. This type of addition is called associative addition, and this law is called associative law of addition. Examples. First, 3 plus 4 plus 5 is equal to 3 plus 4 plus 5. A means A, B means 4, C 5. Then we write in this way B plus C. यानी 4 और 5 4 और 5 को जोड़ते हैं तो 7 3 9 5 4 9 9 3 12 हो गया, और 3 और 4 को जोड़े 7। तो हमारा कहने का मतलब यह है 5 4 9 3 12 और 7 5 12, यानी दोनों का एडिशन 12 है। यानी 3 इट मीन्स 3 प्लस 4 plus 5, यानी 9 plus 3 12, 7 plus 5 12, we get 12. This type of the laws, this type of addition follow this law, associative laws of addition. Associative laws of addition. Another example. Second example, 4 plus minus 6, 4 plus minus 6 plus minus 8 is equal to
माइनस 14 माइनस 10 -6 -8 -8 14 में से ये निकल गया क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा हो गया तो घट गया। तो कितना आया? -14 में से 4 घट गया तो -10 आया। इसी तरह -14 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो -10 आया। तो ये दोनों, इसका मतलब है ये किस लॉ को फॉलो करें? एसोसिएटिव लॉ ऑफ ये एडिशन है, इसका फॉलो कर रहे हैं। इस तरह से कई एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल और है इसी में, देखिए ऐसे 4 प्लस -6 4 प्लस -6 एक में कर दिए प्लस 8 बाहर, -8 को बाहर कर दिया गया, यानी यहाँ पर लगा दिया गया है -8। इसके बाद अब हम इसको जोड़ेंगे तो इसको हम किस तरह से जोड़ेंगे? ये कैसे फॉलो कर रहा है? देखिए a प्लस बी एक क्वेश्चन प्लस सी। तो दूसरे बार दिखाएंगे कि हम जोड़ रहे हैं। देखिए 4 यानी ये हो गया आपका 4 में से ये निकल गया तो -2 बचा और -8 -10। अतः in this way this type of addition is also followed the law of associative law of addition. It means a plus b एक कोष्ठ में और सी अलग है। फिर देखो इसमें से इसको हटा दिया गया तो -2 आ गया, -2 और 8 -8 -2 और -8 मान लिया है। इस तरह से कर दिया तो ये -10। अगला नेक्स्ट लॉ प्रॉपर्टी 4 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 4 चौथा प्रॉपर्टी क्या है? जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी क्या है? चौथा प्रॉपर्टी जीरो प्रॉपर्टी। देखिए इफ ए is any integers, then a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a। इसका मतलब ये हुआ कि a और 0 को जोड़ा जाए तो फिर 0 और a को जोड़ा जाए तो दोनों मिलाने के बाद लास्ट में रिजल्ट 0 आता है। इसका इसीलिए रिजल्ट इसका a आता है, 0 नहीं a आएगा, क्योंकि 0 में किसी इंटीजर को जोड़ा जाए तो इंटीजर से वही इंटीजर से आएगा, चाहे जितना जो भी इंटीजर। या इस प्रकार से इस टाइप के एडिशन को हम जीरो प्रॉपर्टी करते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर बात है, फर्स्ट 1 + 0 = 0 + 1 = 1। सेकेंड -4 यानी -4 + 0 = 0 + -4। रिजल्ट वही आएगा सबका, इसका भी रिजल्ट वही आएगा, -4 आएगा। इसका मतलब कि ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है।
यानी जीरो प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी को है, यानी जीरो में कोई भी इंटीजर जोड़ने पर उतना ही आ रहा है वही इंटीजर। इफ द इंटीजर ए इज द एनी इंटीजर देन ए प्लस जीरो एंड जीरो प्लस ए इक्वल टू ए, दोनों तरफ से ए प्राप्त होगा। अतः हम कह सकते हैं इस एडिशन को जीरो को। आगे देखिए फिफ्थ, फोर्थ प्रॉपर्टी खत्म हो गया। अब आपको मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी बताने जाता हूँ। पांचवा प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी को देखिए। प्रॉपर्टी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या देती है? फिफ्थ प्रॉपर्टी में आप देखेंगे कि एडिशन इनवर्स ऑफ एन इंटीजर्स, additive inverse of additive inverse of an integer। additive inverse of an integer, ये पांचवा प्रॉपर्टी है। ये देखिए a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस ए इक्वल टू जी। इसका मतलब इसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अगर ए में माइनस ए को जोड़ा जाए तो हमको जीरो प्राप्त होता है। ए प्लस ए में प्लस ए प्लस में और इसको जोड़ा जाए माइनस ए तो a प्लस माइनस ए इक्वल टू जीरो होगा। इस प्रकार से जब जीरो प्राप्त होता है इसका मतलब हम कह सकते हैं माइनस ए इज अपोजिट, माइनस ए इज अपोजिट ऑफ इंटीजर। माइनस ए इज अपोजिट ऑफ इंटीजर्स ए। इंटीजर ए का ये अपोजिट है माइनस ए जो है अपोजिट इंटीजर। समझ में आ रहा है? Thus the sum of integers and its opposite always zero. The sum of the integers and its opposite is always zero. किसी भी इंटीजर्स का जो सम उसके अपोजिट और इंटीजर को जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वो हमेशा क्या होगा? जीरो। एडिशन ऑफ सम, एडिशन ऑफ द इंटीजर्स एंड अपोजिट ऑफ दैट इंटीजर इज ऑलवेज जीरो, वो हमेशा जीरो होता है। इसको हम लोग जानते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका मतलब एग्जाम्पल में हम कर सकते हैं प्लस 5 माइनस 5 यानी प्लस माइनस 5 का अपोजिट माइनस 5 है तो 5 का अपोजिट माइनस 5 है यानी 5 प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अभी भी आपको बताया गया कि एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर किसी अन्य इंटीजर में इस नियम को, ये नियम को यह दोनों डिजिट भाग कर रहे हैं प्लस 5 और माइनस 5, क्योंकि माइनस 5 अपोजिट किसके? प्लस का। और दोनों का सम जब निकालते हैं तो ये जीरो हो जाता है। देखिए जैसे -20 है और +20, -20 + 20 0, -20 + 20 0 होता है। इसका मतलब यह है कि -20 में +20 को जोड़ा जाए तो दोनों का सम 0 हो जाता है। इसका मतलब यह है इट मीन्स
-3 का अपोजिट 20, -20 का अपोजिट 20 है, या 20 -20 का अपोजिट है, जो भी कहिए, तो दोनों का एडिशन क्या होगा? 0 होगा। इसलिए इस ये जो है इस तरह के एडिशन को हम किस नियम को बता दें? एडिशन इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिशन का नियम बताते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी 6 में आप देखिए प्रॉपर्टी 6 में एवरी इंटीजर है सक्सेसर आर, एवरी इंटीजर हैज ए प्रीडिसर, सक्सेसर और प्रीडिसर, सक्सेसर एंड ए प्रीडिसर, प्रत्येक इंटीजर जो है एक सक्सेसर और प्रीडिसर रखता है, उसके पास होता है। ऐसा क्या है? ऐसा नियम क्या है? इसका नियम यह है कि जैसे 5 एग्जाम्पल 5 में हम 1 को जोड़ेंगे तो ये 6 होगा। इस घटना को हम कहते हैं सक्सेसर, यानी एग्जाम्पल में सक्सेसर ऑफ 5 इज 6 सक्सेसर ऑफ 5 इज 6 है। इसका मतलब जो 5 जो है में अगर एक हम बढ़ाते हैं, जोड़ देते हैं, तो इसका सक्सेसर हमको 6 मिलता है। सक्सेसर मतलब सक्सेसर बढ़ना। और अगर हम प्रीडिसेसर कहें तो आ नहीं रहा क्या ऊपर, बस एक अगर मान लीजिए कहा जाए कि -12 का प्रीडिसर है, -12 में -1 हटा दें तो इसका प्रीडिसर कितना हो जाएगा? -13। यानी अगर 13 है तो 1 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। यानी 12 जो है प्रीडिसर का मतलब घट जाना, 1 को घटा देना प्रीडिसर कहलाता है। तो इस तरह से 13 में से घटा दे 12 और -12 में से अगर 1 घटा दिया गया तो -13। थैंक यू।